फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। A very warm welcome to the viewers and our Indican family. आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे हमारे ICFC प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हुए। तो देखते हैं ICFC प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा वीडियो। Indian culture keeps us bonded with one another, no matter where we are. We kept in mind the shared culture between India and Canada and formed the Indican Friendship Club. Chairman of Gold Soup Group, Mr. Surendra Gupta ji, and Director of Raksh, Mr. Anmol Chawla ji, joined hands and created an online platform to make the connection between the two countries more secure. Mr. Surendra Gupta ji is the chairman of Gold Soup Group, a corporate house of Delhi NCR. He is a renowned developer, builder, and financier working in various states of India. He is also the chairman of All India Agarwal Samaj, senior working president of International Vaish Federation, worked on key posts and very active in Rotary International, Rotary Club of Delhi Rajdhani, Agarwal Samaj, NGO Suniye, RWA Vasant Kunj Farms, Jai Narayan Godham, PhD Chamber of Commerce, and many more NGO, social, religious, and market associations. Mr. Anmol Chawla ji is the director of Raksh Management Private Limited, which is a 360-degree marketing and event planning firm. He is a young entrepreneur and has been an active leader of Rotary International for 8 years. He is also the trustee of organizations like Tobago and Divya Vardhan Charitable Trust. Indican Friendship Club is connecting people of India and Canada virtually to build friendship, exchange business, and also interact with one another. You can enter the virtual world of Indican Friendship Club through our website www.indicanfc.com. To become a member, you can visit our website and click on Join Us. Click on Create Account, enter all the details of authentication, create your own username and password, click on Sign In to proceed. Enter the login credentials that you created and click on Sign In again. You will enter the main lobby of our Indican world. You can explore our additional attractions on the website. You can promote your company or brand in the exhibition area where you will find our service providers very soon. You can avail their services by contacting them directly. In the clubhouse, you can play our uploaded games and have fun. There is a card exchange section created specially for you to share your business visiting cards to increase your visibility and let others know about your business. The most entertaining section will be the auditorium. You will be able to attend all our gala entertainment evenings in this auditorium. Big celebrities in renowned faces will be live here and you can enjoy listening to them. If you become our member, you will get all the updates about our upcoming entertainment nights the entire week. We have created this club with the purpose of uniting people and making the lives of the immigrants in Canada easier. We will also help the people in India to connect with the people in Canada who are willing to relocate. We also intend to do a cultural exchange that brings the people together, keeping them united. Let us join hands and come together on this platform. Well, the video says it all. The organization has some amazing perspective and plans to develop the relationship between people of India and Canada. मेंबरशिप के लिए आपने देखा आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है जिस पे आप इस टाइम हमें देख पा रहे हैं
बस यही आपको ज्वाइन नाउ पे जाके साइन अप करना है। अगर आप कर चुके हैं तो हमारे हर इवेंट को देखने के लिए आप साइन इन कर सकते हैं एंड हैव अ व्यू ऑफ आवर आईसीएफसी ऑडिटोरियम, जहां हम हर हफ्ते मिलके कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेके आएंगे। So talking about today's event, it is going to have a lot of segments which will be both knowledgeable and entertaining at the same time. तो नाम है बातचीत। तो आज बहुत अलग अलग फील्ड के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे एंड जानेंगे उनकी जर्नीज और उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो बिना वक्त जाया किए, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट segment, which is with our speaker, Miss Pushpa Nair ma'am. Miss Pushpa Nair is a Marcom specialist with over 2 decades of experience in both corporate world and public consultancy. The corporates include names like Taj Group of Hotels, Veer Exhibitions Group, Ananda in the Himalayas, World Hotel Marketing, and agencies such as Hill, Knowlton, O&M, Enterprise PR, Rediff PR, and Perfect Relations, where she has worked for blue chip companies. Her areas of expertise are strategy and event management. Apart from this, Ms. Nair also talks on public relations, corporate communication, and event management, and is a guest lecturer at Vedika Scholars Program for Women. Ms. Nair has an MA degree in history from Delhi University. And this session with her today will be moderated by Ms. Sushma Das, who is a part of our ICFC team. She has done her post-graduation in journalism and now is the founder of Onlookers, which is a PR agency. Sushma is doing excellent and is an expert in her own field. She also has a very keen interest in classical music, which brings her to be a very active and core member of SPICMICI. Now over to Sushma to take the session forward and explain about the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आप आए और आपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. So today we will be talking about developing and promoting our culture through media. So whenever we talk about culture, heritage, यहाँ पे अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दे आर लैकिंग समवेयर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर ओन हेरिटेज एंड कल्चर. Reason being, the youth of today are overwhelmed with the Western culture. So somewhere they are ignorant to the vast cultural diversity and heritage of their own country. So we would like to know how media can actually play an important role in creating awareness amongst youth. सुषमा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई सिंपल आंसर नहीं है. आई मीन, बिकॉज let's also look at the environment in which we operate, and it's a fact that there is so much of noise. Social media ke alone, there are about 350 channels. So which media are we talking about really? Traditional media has taken a hit, broadcast media, so there is a lot. And I think because you're surrounded by so much of noise, the attention span of people also has been greatly reduced. You tend to actually focus on what you know. Now, it's a sad fact that most of us growing up here in India really know very, very little, like you mentioned, कि हमारा जो culture क्या है, etc. Whatever we actually, in many cases, learn is really things which have now become very popular in the West. That is things like yoga, wellness, holistic living. ये सब तो, this is very purana. This has been here for years and years. अब everybody in the West is waking up to it, तो हम लोग भी सोच रहे हैं. But otherwise, Ayurveda has already always existed over here. Similarly, when we talk about the other aspects of Indian culture, the purity of Indian culture itself has been so very diluted by our films. Now, if you look at the Hindi films, जो Bollywood का है, people staying abroad have a very mixed idea about what Indian culture is. And this is thanks to, Bollywood. Bollywood shows some traditions and some things which are totally, in fact, really have no meaning, but that has become part of our culture. So it's the amount, and unfortunately, our schools
never teach us about Indian culture. We're so busy focusing on what the West can do for us that we sometimes forget that we have knowledge with us and we should. And similarly, media. Media only, after all, is the tool of the people who read it. If people do not want to read about it, you can't blame media for doing it. So, social media will have to take a huge role in trying to create that kind of awareness, build those community groups, create influencers who can actually talk about it. We are having, it's a slow process. I mean, after all, Coca-Cola started the Coke Studio, which was to create the whole thing about Sufi music and everything. Spick McKay does a wonderful job in again expanding Indian culture. So there is, but it's a slow movement, and I think it's something that has to be encouraged, but only if people are interested. Otherwise, unfortunately, it will cease to exist. Exactly, ma'am. Like having a deep rooted understanding of one's culture and tradition makes children or the citizen have a sense of belongingness and helps them feel rooted. उनको खुद पे प्राउड फील होता है कि yes, I know something about my country, something about my culture. So हम कैसे एक ऐसा रूट बना सकते हैं मीडिया के थ्रू जिसके जरिए यंगस्टर्स और हमारे जो सिटीजन्स हैं अपने रूट से कनेक्ट कर सकें. Well, it would be a good idea to identify in the media. और जब हम मीडिया की बात कहते हैं ना, we're not talking about जो print media alone है. We're talking about can we create influencers and have them use their channels to promote aspects of Indian culture. क्योंकि बात तो ये है ना कि if somebody writes about it or a company writes about it, it doesn't mean that people will believe it. But if it is somebody who in their own right काफी जाने पहचाने हुए हैं and they talk about it from that aspect, so there are people who will be more willing to listen to them, follow them, and that is something that is really required. And I think it is something that your organization should look at trying to create these influencers and create a kind of a conversation wherein they let not preach, because ये तो बहुत होता है ना कि people teachers tell you कि ऐसा करना वैसा नहीं करना. I have done the same thing, so I know this is a fact, a very bad habit, right? But actually encourage people, find out from them what is it that you want to know. See, the thing is, Indian culture is very old, बहुत कुछ है इसमें. लेकिन there's no point in saying कि रामायण में ऐसा होता था, महाभारत में वैसा होता था. You've got to talk about what is relevant today. I mean, अभी भी जो है, the Bhagavad Gita, Devdutt talks about using the Bhagavad Gita for as a management tool. You can have a solid class in handling business through what was written in the Gita. So these are things which need to be bought out and shared with people. The youth are also looking, I mean, there is no denying the fact that there are certain things like yoga, for example. It's a wonderful way of centering yourself, of being able to increase your powers of concentration. लेकिन योगा जो पढ़ाया जाता है ना, it is more like exercise करो. Yoga is not exercise alone, it is mental and physical health that you're looking at. Now, these are things that should be taught and should be taught in a way that it is seen as interesting. You see, school mein or the media talks about yoga as Ramdev ne aisa kiya. That's not good enough. It has to be a proper class done in a way which is interactive. I mean, अगर अब देखा जाए तो yoga, the way that it was in India and the way it's gone out and the way it's now come back to India. Why do so many Indians do yoga now? क्योंकि वापस west में से आ गया. So whether you have dancing yoga or you have hot yoga or God knows what yogas, बहुत yogas भी है ना. So it has to be what is of interest to the people. That's what I think is important. एग्जैक्टली मैम, क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको हम भूल चुके हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम आगे जाके रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक वैनिश हो जाएगा हमारा कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि कोई याद नहीं रखना चाहेगा. राइट, एग्जैक्टली. सो मैम, इफ वी टॉक अबाउट कल्चरल हेरिटेज, which is something like that human beings share, right? Wherever we come from, there is culture that follows us from that place. Okay, so no matter where you grow up, where you go, your culture will always be something
you can take with you, right? So I just want to know कि हम किस तरीके से स्कूल में जब छोटे होते हैं बच्चे उस वहां से हम उनको पढ़ा सकते हैं किस तरीके से, और ये क्यों जरूरी है कि ये स्कूल में शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, और किस तरीके से उनको क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्कूल के द्वारा। आई थिंक अगर बात किया जाए तो स्कूल्स, यहाँ पे जो स्कूल्स है वैसे बच्चे इतने बर्डनड है बेचारे, दे कैरी स्कूल बैग्स विच पॉसिबली वे 5 kilos या 7 kilos, सारे टाइम एग्जाम्स होते हैं. वेयर आर दीज पीपल गोइंग टू हैव द टाइम टू लुक एट दीज अदर थिंग्स? आई मीन मार्क्स आपको तो योगा करने के लिए तो नहीं मिलने वाले ना, या मार्क्स यू विल गेट कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना पढ़ा आपने, और वही तो मार्क्स में, सो यू एक्चुअली गेट मार्क्स फॉर रट्टा करोगे. Okay, now culture and all this, these are things, these are soft skills. These are skills which we today still do not recognize as being essential. और दूसरी बात ये है कि culture, yes, we have culture which is very, very old. but दूसरी बात ये भी है that culture has to be a living thing. जो 20 साल या 1000 साल पुरानी बात है, इट मे नॉट इवन बी रेलिवेंट टुडे. तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स, जैसे कि ना इफ यू लुक एट आवर ओल्ड टाइम्स, लाइक दी we used to have these stages of life, right? You were in a school, then you were married, then you lived through that, and then you went to the woods. अब वो सब तो होता हो ही नहीं सकता. So what is it that you can take? What is it that is easily imbibed? जैसे when you're kids, जब हम you have medicines, होता है ना कि the sweeter medicines are easier to take, the bitter medicines are very difficult, you don't want to take them only. तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके if you start teaching a child, for example, the powers of concentration, small thing. I mean, how many of us can sit still? बहुत कम लोग हैं who can actually sit still, and that is the basic, that is the beginning of all focus. When you start with that, you can take it further. So culture has to be given in a teaspoon. Some people will want more of it, some people will want less of it. And again, this is not something that can be forced. Jitna people want to take, utna hi lenge. No, I can, nor I know you can do anything about it. But at least we have schools now which teach about Indian culture. But again, it is not really part of. You don't get credits for doing this. You will get credits in your traditional subjects. English में कितना मिला, हिंदी में कितना मिला, chemistry. This is the kind of stuff. This is not really taken as so seriously. I mean, जो पुराने styles के जो schools थे, where you sit with your teacher and you would have those old types of schools, वो गुरुकुल, वो तो अब कितने कम है, and those that exist इतने महंगे हैं that how is an ordinary person going to go to a school like this? Yeah, it is so expensive. So again, it's this question of what is it, and is it really an affordable thing? Right now, the Gurukuls are places which are very expensive. NRI send their children over there. या यहाँ के जो businessmen है, they can go. बस बाकियों का तो है ही नहीं. एग्जैक्टली मैम, दैट्स व्हाट जो अभी चल रहा है, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है. बिकॉज cultural development, I think, is not a process of a day or two. Rather, it's process needs a sufficient time to evolve, because the culture that we all have been following so far, like have a scope of some modification and changes according to the demand of the modern time and media. So I think that media and the young generation of our country can do this task with ease. So I just want to ask, like, what message would you like to give to the youth that they should become representatives of their own culture and heritage? I think the only message that I would give, because I don't believe in preaching, I don't believe in giving these bhashans and all. I think you should take whatever aspects of culture that appeal to you, and these aspects of culture that appeal to you must not essentially be stuff which you have been taught by your parents or whatever. This must be something that you believe in, because if you believe in something, you will want to share it. If you're forced into something, it is like verbal diarrhea, na, कि एग्जाम्स के लिए पढ़ा, उसके बाद you've forgotten everything also.
Similarly, the same thing will happen. But let them know the basics, let them explore. There are many, many aspects of culture which should not be limited by what I think is culture or you think is culture. Culture, there's so many different traditions. Do those traditions make sense to you? If they make sense to you, imbibe it, live with it, spread the good word. And if those traditions, if that culture doesn't make any sense to you, throw it. Culture has to be a living thing. ये नहीं है कि 100 साल पहले ऐसे लिखा था तो ऐसे ही होगा. It should be what it is because you want it to be. That is what culture is. It's not a book. Everybody writes in this book and you keep reading it and you take from it what you want. And that's what it should be about. And I think that is what all students, anybody who's interested, anybody who'd like to be aware of their country, that is what they should take. एग्जैक्टली मैम, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, राइट, सो हाउ वी कैन एक्चुअली इन्हांस द प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज थ्रू मीडिया इंटरनेशनली. सुषमा, if you look at the media, internationally, अगर आप मीडिया की बात करो, what is it that the international or is what is it that the world knows about India? बस ये बॉलीवुड, हमारे heroes they kill, they do bang bang bang, about 10 people are shot, or they talk about the power team. These are recurrent themes that the media itself talks about, and this is the thing that the international media also keeps on highlighting. But where is the other side of the story? The fact that India as a country is a country which is a vibrant country. It is a country which forget having people within the whole context of being an Indian. You have so many little subcultures. I mean, you take any state, for example, you will have people with different kinds of mindsets, different ideology, their own little traditions. अब हम as Indians, अगर मैं आपसे पूछूं कि what are the traditions and culture you know, you'll probably know the big story. But जो little little चीज है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, because we have so many subcultures within a big culture. और रही बात, the only thing that internationally is known जो बॉलीवुड में दिखाई देते हैं, हिंदी films are very popular, शाहरुख खान हो या और whatever are the other Khans, they are the ones who are known. And what is the story that we say? There is this big thing. So, jitne bhi, even Indians who are abroad, they the culture that they follow is the Bollywood culture, जो culture नहीं है हमारा. It is not the Indian culture. तो आप कहाँ से शुरू करोगे फिर? Exactly, ma'am. I think like all they need is knowledge of culture, encouragement, participation, and respect for like our own culture, their culture. They should understand that culture is our own reflection. Thus, this reflection should be maintained with purity and dignity. So, we at ICFC, Indican Friendship Club, is trying to break that barrier and promote culture and heritage internationally and nationally. So, ma'am, we would like to have some of your blessings for our Indican Friendship Club. Absolutely. I wish you guys all the very best. More than anything else, I think the world is going in a way where we're becoming increasingly intolerant. If we could be more tolerant, more accepting of everybody's culture and beliefs, it'll probably be a much better world. So I wish you guys all the very best. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Well, it was indeed a very informative talk, and like me being a listener, I could actually gather the essence of this wholesome discussion and know how important it is to know about our own culture. So, thank you so much, Sushma, for moderating the session so amazingly, and thank you so much, Pushpa ma'am, for doing this batch sheet for our audience today. And now we will be moving on to the next segment, which I feel is the most awaited one in almost every event, जिसके लिए ज्यादातर म्यूजिक लवर्स जो हैं उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है. So firstly, I would like to welcome Azim Khan ji, who has joined us today. वो हमारे कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हमारे लिए गुनगुनाएंगे. पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी अजीम जी का. अजीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. हमारी ऑडियंस
आपके बारे में कुछ कुछ जानना चाहेगी, तो प्लीज आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरह के सॉन्ग्स आप आज गाने वाले हैं एंड किस तरह के सॉन्ग्स आप गाते हैं, तो वी वुड लव टू नो। आज मैं सूफ़ी से स्टार्ट करूँगा एंड रेट्रो, कुछ न्यू सॉन्ग्स सब सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। ग्रेट ग्रेट। सो व्हाट विल बी योर ओपनिंग सॉन्ग? अजीम किस सॉन्ग से स्टार्ट करना चाहेंगे आप? मैं रश के कमर से स्टार्ट करूँगा। ग्रेट। तुम जो हंसती हो तो मस्ताना कमल लगती हो, मीर का शेर हो गालिब की गजल लगती हो, संगे मरमर सा तराशा हुआ हुर नूर बदन लगती हो, सांस लेता हुआ एक ताजमहल लगती हो, और हुस्न की मलिका रूप की रानी, हुस्न की मलिका रूप की रानी अजी धानी धानी लगती हो, शादी हुए जमाना गुजरा अब भी कवारी लगती हो, मुस्कुरा कर मिलाई नजर से नजर, धड़कने दिल से आई मजा आ गया, तेरी उड़ती जवानी ने दिल रुबा, तेरी उड़ती जवानी ने दिल रुबा, यूं कयामत लुटाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। Wow, it was indeed a very great and energetic start, अजीम जी। Like आपने काफी energetic माहौल क्रिएट कर दिया मुझसे। So we are really looking forward कि आपका नेक्स्ट सॉन्ग क्या होगा। अब नेक्स्ट सॉन्ग जो है बहुत ही
सरप्राइजिंग है, सो लेट्स सी। ला 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 ला। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ला 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 ला। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। सफर में है ये बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Well, I really loved how you have given this song your own touch, because वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सॉन्ग है जो आप गा रहे हो दोबारा से, कुछ एसेंस था आपका अपना जो आपने इसमें डाला था, which was really amazing. शुक्रिया। So next song is, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। Well, I feel ये कुछ ऐसे evergreen songs हैं जो आप कहीं पे भी चल जाएं, you cannot resist lip syncing to these songs. And I'm sure although we are here bounded by this virtual platform, but लोग हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, इंडिया के जिस भी कॉर्नर से, कनाडा में लोग जहाँ से हमें देख रहे हैं, वो सब आपके साथ साथ इस सॉन्ग को जरूर गुनगुना रहे होंगे, because that's the kind of energy these songs have, right? करेक्ट। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर यूं तरसती रही, तड़पते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में था, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया।
एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। आपका अरमां, आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे। अजीम जी, बिफोर वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सॉन्ग, मैं एक आपका अभी तक जितने भी आपने सॉन्ग्स गाए ना, एक कहीं ना कहीं उनमें एक सिमिलैरिटी है। तो मैं जानना चाहूंगी क्या मतलब ये जो इस तरह के रोमांटिक एंड ओल्ड सॉन्ग्स हैं, ये ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप यूजुअली गाना प्रेफर करते हो, लाइक, और मे बी विच आउट ऑफ दीज इज योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, बट आज लिमिटेड टाइम है तो मैं कुछ ही सॉन्ग अपने फेवरेट जो मैं हमेशा शोज़ में गाता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि ये गाने लोग बहुत सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, सो आई ट्रीज दिस सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, वी वुड रियली वांट टू नो कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है। एंड देन बिकॉज जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग गाते हो, कहीं ना कहीं अलग ही एनर्जी एंड अलग ही माहौल बन जाता है उसके बाद। सो आई वुड रियली वांट यू टू सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। यस, सो नेक्स्ट सॉन्ग इज दोस्ती पे है, so let's। अरे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीनी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार जिसको तुमसे हो प्यार, कोई तो हो राज़दार। अरे यारों मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुमसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारों मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुमसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। आई वुड रियली से कि मेरा, आपको पता है, जो भी सॉन्ग आप गाते हैं उसके बाद माई नेक्स्ट demand would definitely have been about a friendship song, because considering this platform that we are on right now, Indican Friendship Club, which is all about friendship between the people of India and Canada. So I really wanted you to sing a friendship song, which you already did, so hats off, and it was really amazing. Thank you so much.
अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या तुम खुद ही समझ लो। ओ मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। दरारें दरारें हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, कितने हिस्सों में बट गया हूँ मैं। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो। आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। धन के हाथों ही बिक गए हैं सभी, धन के हाथों ही बिक गए हैं सभी। अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जब आपने स्टार्ट किया मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ये सॉन्ग सुना है, लेकिन जब आपने आगे वर्डिंग्स कंप्लीट किया था दिस इज समथिंग न्यू, बट दी वर्डिंग्स वर रियली रियली ग्रेट आई वुड से। काफी मीनिंग था लिरिक्स में, so I really like this one. So अजीम जी बढ़ते हैं हमारे क्लोजिंग सॉन्ग की ओर। सो आई वुड वांट कि आप एक सॉन्ग जो डेडिकेट करें हमारी ऑडियंस को, जो यहाँ पे इंडिया में हमें देख रही है और जो कनाडा में हमें देख रही है, समथिंग फॉर आवर एंटायर ऑडियंस। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी
ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। मुझको बाहों में तुम घेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझसे यूं नजर ना फेरो, समझी ना सेन्योरिटा। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बालो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाओ, अमेजिंग। सो आई थिंक लास्ट में आपने काफी एक माहौल क्रिएट कर दिया which was really really amazing. I would like to say thank you so much Azim ji for this musical segment which was undoubtedly very refreshing, and your singing is extremely amazing, I would say. So we really wish the best for you, and we would want your wishes as well for this platform, and I am sure that our audience had a great time listening to you. So मूविंग अहेड, इसी के साथ हमारा आज का इवेंट होता है समाप्त। एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगी आप सभी से कि हमारे इस क्लब के बारे में सबसे शेयर कीजिए, हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। हम ऐसे ही हर हफ्ते आएंगे और जिस अलग अलग तरह के शोज, जिस तरह के सेगमेंट्स आप देखना चाहते हैं वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। आवर टीम विल बी कनेक्टिंग विद यू एंड वी वुड लव यू to be a part of our ICFC family. And जाते जाते एक सरप्राइज सेगमेंट that we keep in our every event, हम चाहते हैं कि एक जो बॉलीवुड के काफी पसंदीदा कलाकार हैं जिनका बर्थडे हम लोग हमारे हर इवेंट में सेलिब्रेट करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं कि हम उनका बर्थडे मनाएं। तो आगे बढ़ते एक छोटे से वीडियो की तरफ जो which is a small dedication from our side to some of the celebrities on the occasion of their birthday. तो अगर आप वो देखना चाहते हैं आप बने रह सकते हैं इसी ऑडिटोरियम में। बाकी once again thank you so much to our lovely audience. Thank you for joining. मिलते हैं अगली बार। नाम है इनका आर माधवन। आर माधवन साहब का जन्म हुआ 1 जून सन 1970 में, जगह जमशेदपुर, जो कि पहले बिहार में थी और अब झारखंड में है। ये दरअसल एक तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में मैनेजर थे और इनकी माँ सरोजा बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम किया करती थी। इनकी छोटी बहन देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हालांकि ये हैं तो तमिल भाषी, लेकिन इनका भरण पोषण करे और कई अवार्ड जीते। साल रहा होगा कोई सन 1996, जब एक पाउडर के लिए इन्होंने एक एड फिल्म में काम किया जिसे डायरेक्ट किया था जबरदस्त कैमरामैन और डायरेक्टर संतोष सिवान ने। संतोष सिवान ने ही इनका नाम सुझाया महान फिल्म मेकर मणि रत्नम को, जैसे कि इन्फर्नो, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, गुरु फिल्म में तो इनका किरदार बहुत ही कमाल का था। दिल्ली हाइट्स और 3 इडियट्स को कौन भूल सकता है।
ऐसी अभिनेत्री की जो फैशन डिजाइनिंग में अपना नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने बना दिया इसे भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार्स में से एक। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और जो मैं हूँ आज इन्हीं के वजह से हूँ, आप सब की वजह से हूँ। नाम है इनका सोनाक्षी सिन्हा। इनके पिता सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा हैं और निहायत खूबसूरत है इनकी माँ, जिनका नाम है पूनम सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा एक कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते हैं और माता एक सिंधी हिंदू परिवार से। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म हुआ 2 जून सन 1987 में। इनके 2 जुड़वा बड़े भाई हैं, लव और कुश। फैशन डिजाइनिंग ही करना चाहती थी और ये बहुत खुश थी, लेकिन तभी सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान की नजर इन पे पड़ी। वो फिल्म दबंग बनाना चाहते थे और चाहते थे कोई ऐसी हीरोइन हो बहुत ही खूबसूरत जो उस क्षेत्र की लगे जिस क्षेत्र पर आधारित फिल्म दबंग होगी। एक ऐसी हीरोइन जिसमें भारतीयता कूट कूट के भरी हो, और इस तरह से इन्हें ये फिल्म दी गई। इनकी मर्जी भी नहीं पूछी गई थी, बल्कि इनसे कह दिया गया था कि तुम्हें ये फिल्म करनी ही है। कुछ अलग करने का सोचा था उन्होंने और कर दिखाया। आई थिंक इट वाज क्वाइट नाइस। करिए आई। इन्होंने एक डायलॉग मारा जो कुछ इस तरह से था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हीरोइन भी लगती हैं और उन अभिनेताओं की हीरोइन भी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नई नई शुरुआत। बाल अभिनेत्री और मॉडल है जो हिंदी भाषा की फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई देते हैं। उनका जन्म 3 जून 2008 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 7 स्क्वायर एकेडमी मुंबई से पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम विपुल मल्होत्रा है। उनके माता का नाम काजल मल्होत्रा है। उनके बड़े भाई है जिनका नाम हार्दिक मल्होत्रा है। हर्षाली मल्होत्रा ने फिल्म बजरंगी भाईजान में एक म्यूट लड़की की भूमिका निभाई है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बहुत गप्पे मारते हैं। उन्होंने साहित्य की भूमिका निभाई जिसे मुन्नी के रूप में भी जाना जाता है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की जो भारत में खो जाते हैं, और एक भारतीय पवन कुमार चतुर्वेदी जो सलमान खान द्वारा निभाई गई की मदद से अपनी मातृभूमि की यात्रा करते हैं। इनके फैंस इन्हें प्यार से नेहाश के नाम से भी बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में। अपनी आवाज से ढाई गोली चलाकर लाखों लोगों का दिल जीतने वाली ये लड़की कभी रात भर जाकर जगरातों में गाती थी, जिसके लिए उन्हें केवल 100 रुपए मिला करते थे। और वही नेहा आज एक गाने का 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहा कक्कड़ ने आज तक कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। 6 जून 1988 को जब उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेहा कक्कड़ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जय नारायण कक्कड़ है और माँ का नाम नीति कक्कड़ है। इनकी बहन का नाम सोनू कक्कड़ तो वही भाई का नाम टोनी कक्कड़ है। इनकी बहन सोनू बचपन से ही गाती थी, इसीलिए इनके मम्मी पापा आसपास के शहरों में जहाँ कहीं भी जगराते होते, इनकी बहन सोनू को लेकर जाते। रिश्तेदार और समाज के लोग उन्हें ताने देते थे कि कैसा बाप है, लड़की को गाने गवाता है। अपनी बहन को कहती है कि ईमानदारी से काम करो और जिस काम से आपको खुशी मिलती है वो करो। और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री अमृता राव का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है। अमृता राव ने जब फिल्मों की रेस में कदम रखा तो उस समय सबको यही लग रहा था कि आने वाले वक्त में वो एक सफल अभिनेत्री बनेंगी, लेकिन ऐसा न होकर वो धीरे धीरे दर्शकों की नज़रों से दूर हो गई। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया, क्यों लगे दिन में भी
क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई के चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका फिल्मों की तरफ रुझान था। मुंबई में पढ़ी लिखी अमृता ने सोफिया कॉलेज से अपनी स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। अमृता राव की बड़ी बहन प्रतिका राव एक मॉडल रही हैं, इसीलिए अमृता राव ने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। सोफिया कॉलेज में उन्हें फेयर एवर फेस क्रीम के लिए ऑडिशन में चुना गया। इसके बाद अमृता ने पर्क और ब्रू जैसी बड़ी कंपनियों के उत्पादों के लिए ऐड किए, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे खुल गए। साल 2002 में फिल्म अब के बरस से अमृता राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके अपोजिट राज बब्बर के बेटे थे, और इसके बाद साल 2003 की फिल्म इश्क विश्क से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। इश्क विश्क की सफलता के बाद अमृता की पहचान एक सिंपल एंड स्वीट हीरोइन की तरह बन गई। मस्ती, मैं हूं ना, वह लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। एक निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री की, जिन्हें हम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के नाम से जानते हैं। I want people to have that faith in us. So हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है, हमने अपने फेथ पे किया है, थ्रू ट्रूथ पे किया है। दोनों ने नाम जो कमाया, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कमाई है। शिल्पा शेट्टी का जन्म हुआ 8 जून सन 1975 में। ये दरअसल मैंगलोर से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम है सुरेंद्र शेट्टी और माँ सुनंदा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की तरबियत मुंबई में हुई। इन्होंने सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की। बाद में ये मुंबई के पोद्दार कॉलेज का हिस्सा बनी। ये एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम डांसर हैं। इस बात पर भी आपको हैरानी होगी कि ये अपनी स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थीं। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई कि इनका असली नाम रहा अश्विनी शेट्टी, पर फिल्मों में इनका नाम हो गया शिल्पा शेट्टी। इनकी एक बहन है शमिता शेट्टी, जो एक अभिनेत्री हैं। रही बाजीगर। हालांकि फिल्म के पहले ही हाफ में शिल्पा शेट्टी का किरदार खत्म हो जाता है, पर इनके अभिनय ने एक गहरा असर सब पे छोड़ा। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। इन्होंने बहुत सी इमोशनल और एक्शन फिल्मों में काम किया, जैसे कि आग, धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये सभी फिल्में बड़ी मकबूल हुईं। लेकिन आप अपनी इन आंखों का क्या करेंगे? आप कह क्या रही हैं? हमारे कहने का ये मतलब है कि आपकी आंखों से साफ जाहिर है कि आप हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। सैफ अली खान के साथ आई फिल्म आओ प्यार करे ने भी गहरा असर छोड़ा। अक्षय कुमार के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। कई फिल्में ऐसी रहीं जो रिलीज न हो सकीं, और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान स्थापित कर गईं। That's what I'm here to do and that's what I'm going to do. शिल्पा शेट्टी का नृत्य, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। इन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया, जैसे कि मिस्टर रोमियो, जिसमें किसी ने कहा कि ये तो सिर्फ बॉबी है, किसी ने कहा ये है मिसेस राजेश खन्ना, पर इनकी अलग पहचान बनी। पूरा नाम इनका डिम्पल चुनीभाई कपाड़िया। जन्म 8 जून सन 1957 में हुआ। मैं जब चमकती तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरती तो दिल थाम लेते हैं। हाँ, ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान है। 4 बच्चों में ये सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इनके पिता चुनीभाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन रहे। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है, मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है, मगर उसकी तस्वीर है। इनकी एक बहन का नाम रहा सिंपल कपाड़िया, दूसरी रही रीम और तीसरे रहे भाई, जिनका नाम रखा मुन्ना। परिवार मुंबई के ही सेंटा क्रूज इलाके में रहा करता था और डिम्पल की पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल में। इनके पिता एक नामी गिरामी आदमी थे, जिसकी वजह से इनकी परवरिश भी खूब जबरदस्त तरीके से हुई। तेरी इसी अदा ने तो हमें दीवाना कर दिया है शेरू दादा। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, तब अक्सर डिम्पल कपाड़िया अपने मन में कहा करती थी, बॉबी का रोल तो मुझे ही मिलेगा, और ठीक वैसा हुआ भी। डिम्पल कपाड़िया को नरगिस जी की फिल्में दिखाई गईं और कहा गया कि इस तरह की इनोसेंस चाहिए स्क्रीन पर। और 15.5 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो कोई अभिनेत्री करने की सोच भी नहीं सकती। वो और बात है कि उसके साथ राज कपूर जैसा शोमैन भी होना जरूरी है। तुम सच कहती हो?
राज कपूर की बॉबी ने हंगामा मचा दिया। मेरा नाम जोकर के बाद ये राज कपूर का जवाब था। ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ऐसी जमी कि लव स्टोरीज की बाढ़ ही आ गई। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की। अगर अपने मुकदमों की पैरवी इतनी अच्छी डिम्पल कपाड़िया तकरीबन 12 बरस एक्टिंग से दूर रहीं। इन 12 बरसों में इनके 2 बच्चे भी हुए, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना साहब का करियर एकदम ऊंचाई पे जाकर लुढ़कने लगा था। हाथ देखा नहीं जाता, मैं तो घबरा गया हूँ ये गरीबी देखकर। पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही थीं। आए दिन फिल्मी मैगजीन्स में ये खबरें रहती कि ये दोनों अलग हो गए हैं, ये दोनों साथ आ गए हैं। डिम्पल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया है या फिर वापस लौट कर आ गई हैं राजेश खन्ना के पास। और फिर वो लम्हा आया जब डिम्पल कपाड़िया काका जी से दूर हुई और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ये नजर आई। तो ही सबने कहा कहो ना प्यार है, जिसकी एक्टिंग ने गदर मचा दिया। नाम है इसका अमीषा पटेल। जन्म 9 जून सन 1975 में हुआ। शहर था मुंबई, राज्य महाराष्ट्र। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ। पिता का नाम अमित पटेल और माँ आशा पटेल। इनके एक भाई हैं, इनका नाम है अश्मित पटेल, जो खुद एक एक्टर हुए। हाय, आई एम अश्मित पटेल। अमीषा पटेल ग्रैंड डॉटर हैं जाने माने लॉयर और पॉलिटिशियन बैरिस्टर रजनी पटेल की, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। ये बात कम लोग जानते हैं कि अमीषा पटेल भरतनाट्यम में विधिवत प्रशिक्षण ले चुकी हैं। उनका नाम इनके पिता और माता के नाम से मिला के बनाया गया। अमित का अमी, आशा का शाह, अमी शाह। इतनी खूबसूरती से उन्होंने मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया है, तो वेरी हैप्पी। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल मुंबई में। ये बात भी गौर करने लायक है कि ये अपने स्कूल में हेड गर्ल हुआ करती थीं। साल था सन 1992-93। मैंने कभी चीटिंग नहीं की, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, दिन रात पढ़ाई मेहनत करती थी। आप स्कूल में भी जाके पूछ सकते हैं, मैं स्कूल की हेड गर्ल रही हूँ। और उसके बाद ये चली गई विदेश बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। वहाँ पे 2 बरस तक इन्होंने इसी स्ट्रीम में पढ़ाई की और फिर अमीषा पटेल पहुँच गई इकोनॉमिक्स की दुनिया में, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स में। और ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये बनी गोल्ड मेडलिस्ट। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाए। ये शुरुआती दौर में बतौर इकोनॉमिक एनालिस्ट ही काम किया। और उसके बाद अमीषा पटेल को एक तेलुगु फिल्म मिली, नाम बद्री। इनके हीरो थे पवन कल्याण। अमित कुमार, मैंने जो पहचान बताई थी वो सही थी ना? इसे चाकू की नोक कहते हैं ना? ये फिल्म भी बड़ी जबरदस्त हिट साबित हुई। सन 2001 में गदर एक प्रेम कथा आई। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नई नवेली हीरोइन अमीषा पटेल एक 5 साल के बच्चे की मां का किरदार निभाएगी और इनसे उम्र में बड़े दिखने वाले सनी देओल इनके हस्बैंड, उनके प्रेमी का किरदार निभाएंगे। पर जब ये गदर आई तो वाकई इस प्रेम कथा को सबने पसंद किया। तकरीबन 12 घंटे ऑडिशन लेने के बाद फिल्म गदर एक प्रेम कथा में अमीषा पटेल को किरदार मिला और उस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद कई फिल्में आई, जैसे आप मुझे अच्छे लगने लगे, जिसमें ऋतिक रोशन उनके साथ थे, फिर ये है जलवा, क्रांति, क्या यही प्यार है, हमराज। लेकिन धीरे धीरे अमीषा पटेल का करियर थोड़ा सा घायल होता नजर आया। इन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया और हिंदी फिल्मों में भी। आई होप दैट अच्छी फिल्में करूं और हिंदुस्तान की बहुत अच्छी प्रगति देखें हम, और हर एक इंसान की खुशियां मैं चाहती हूँ। ये केतन मेहता की फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग में भी नजर आई थी, जहाँ पे इन्होंने जो किरदार निभाया वो देखते ही बनता था। और इस फिल्म में भी अमीषा पटेल ने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस किया था। एक इंटरव्यू देख रहे थे आमिर खान साहब, जिसमें अमीषा पटेल का IQ बहुत अच्छा नजर आया। तो बस इस फिल्म के लिए इन्हें साइन कर दिया गया। ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने फिल्मों में आने से पहले बहुत घटाया अपना वजन। तकरीबन 80 किलो इनका वजन हुआ करता था, लेकिन महान फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने कह दिया कि देखो सोनम, वजन कम करो और हीरोइन बनो। सोनम कपूर का जन्म हुआ 9 जून सन 1985 में।
इनके पिता सुपरस्टार अनिल कपूर। I remember my dad's got quite a few awards and every time he used to win one. इनके दादाजी एक बड़े जाने माने प्रोड्यूसर रहे, सुनिंदर कपूर। माँ का नाम सुनीता कपूर और इत्तफाकन लंबे समय के बाद इनके चाचा बोनी कपूर ने शादी करी श्रीदेवी से, तो श्रीदेवी हो गई इनकी चाची। पहली चाची मोना शोरी थी। I mean, I come from a film family. सोनम कपूर ने थिएटर और आर्ट्स की पढ़ाई करी यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर से। ये बहुत छोटी ही थी जब इनका परिवार मुंबई के जुहू इलाके में शिफ्ट हो गया। इसकी भी पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। हालांकि ये कॉलेज नहीं गई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम था वो। इत्तफाकन इनकी मुलाकात हुई इनकी पारिवारिक मित्र रानी मुखर्जी से, जो सिंगापुर गई थी छुट्टियां मनाने। उस वक्त सोनम कपूर भी सिंगापुर में ही पढ़ रही थी। शुरू में तो सोनम कपूर एक डायरेक्टर और राइटर बनना चाहती थी, इसलिए इन्होंने रानी मुखर्जी से कहा कि अगर आप कहें तो मैं किसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और इस तरह से संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आ गयी। That's absolutely true. इन्होंने एक्टिंग सीखी रोशन तनेजा के स्कूल से, जयति भाटिया और फिरोज अब्बास खान से भी। And as an actor, it's very challenging to do something like that. अमरिक सिंह और निक नेम है मिक्का और प्रोफेशन से ये एक सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर एंड रैपर हैं। इनका जन्म 10 जून 1977 दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया में हुआ था और 2020 के हिसाब से आज इनकी एज 43 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन पटियाला, पंजाब, इंडिया है। अब इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच और इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से सिख हैं। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो मिक्का सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म के सॉन्ग दिल में बजी गिटार से किया था, जो अपना सपना मनी मनी फिल्म का था, जो 2006 में आई थी। और हम आपको बता दें कि मिक्का सिंह ने बॉलीवुड में काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग भी गाए हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं सिंग इज किंग, मौजा ही मौजा, ओए लक्की लक्की ओए, सावन में लग गई आग, दिल बोले हड़प्पा, आपका क्या होगा धन्नो, थैंक यू मिस्टर डीजे, जुगनी, लॉन्ग ड्राइव, प्यार की पुंगी बजा के, डिंग डंग डिंग, मिलेंगे। ने बॉलीवुड फिल्म के साथ साथ सोलो सॉन्ग भी गाए हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम सोलो में डेब्यू एक्स ब्रांडी से किया था, जो 2000 में आया था और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सिंगल, एल्बम एंड सोलो सॉन्ग भी गाए हैं। और ये एक सिंगर के साथ साथ एक्टर भी हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म में डेब्यू मिट्टी मूवी से किया था, जिसमें इनका कैरेक्टर था गाजी दिल्लो का। और इसके साथ साथ ये टीवी में भी दिखे हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम टीवी में डेब्यू म्यूजिक का महामुकाबला से किया था, जो स्टार प्लस पे आता था। और अभी सलमान यूसुफ का रियल नेम है सलमान यूसुफ खान और निक नेम है इनका सलमान सर। सलमान प्रोफेशन से एक एक्टर, डांसर और कोरियोग्राफर है। सलमान यूसुफ का जन्म 12 जून 1985 को बेंगलोर, कर्नाटका में हुआ और 2021 के हिसाब से 36 साल के हैं। सलमान ने अपने स्कूल की पढ़ाई इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेदा, सऊदी अरबिया से की, जिसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से। दोस्तों, सलमान यूसुफ ने अपने करियर की शुरुआत डांस इंडिया डांस सीजन 1 में पार्टिसिपेट लेकर 2009 में किया था और डांस इंडिया डांस सीजन 1 के विनर भी रहे। जिसके बाद सलमान यूसुफ 2009 में सलमान खान की आई फिल्म वांटेड के टाइटल ट्रैक में डांस करते हुए नजर आए और फिर 2010 में फिल्म रक्त चरित्रा में अपने डांस का जलवा दिखाया और इसके बाद 2013 में फिल्म ABCD एनीबॉडी कैन डांस से बॉलीवुड में डेब्यू किया एज अ एक्टर और रॉकी का एक बेहतरीन किरदार निभाया। और 2014 में सलमान यूसुफ ने डार्लिंग जिद क्रिएचर 3D में एज अ कोरियोग्राफर काम किया और इसके साथ ही साथ सलमान यूसुफ ने 2011 में झलक दिखला जा 4, 2012 में झलक दिखला जा 5, 2013 में झलक दिखला जा 6 को कोरियोग्राफ किया और 2017 में सलमान यूसुफ की 2 फिल्म आई, लव यू फैमिली और हार्ट बीट। और दोस्तों, 2018 में लक्ष्मी फिल्म में काम किया, जो कि एक तमिल म्यूजिकल डांस फिल्म थी और 2020 में बॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में। नाम है इनका आर माधवन। आर माधवन साहब का जन्म हुआ 1 जून सन 1970 में। जगह जमशेदपुर, जो कि पहले बिहार में थी और अब झारखंड में है। ये दरअसल एक तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में मैनेजर थे और इनकी माँ सरोजा बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम किया करती थी। इनकी छोटी बहन देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हालांकि
ये हैं तो तमिल भाषी